दूसरे पत्र को पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा प्रेम पीयूष कुमार जी को। उनका टॉपिक है अयोध्या होर्ड्स रिसेंटली रिपोर्टेड पॉइंट्स, होर्ड ऑफ अयोध्या फ्रॉम बहराइच। Recently, a point board was reported 3 months ago in Bahraich district of Uttar Pradesh. This is the first known major hoard that has been discovered, and approximately 6,000 coins have been recovered till date. This might go even further to 10,000 coins. This hoard was discovered by the locals on the mound of Ikauna village of Uttar Pradesh. The coins were found in the Bahraich region in the Ikauna village, which is approximately 100 kilometers from the known territory of Mitra rulers. This village is located approximately 8 kilometers from the famous Shahra Basti site. And these coins found relate mainly with time as Satyamitra and Ayumitra as mentioned in the Brahmi legends on it. This reads Ayumitasa and Satyamitasa legends on some have faded away with the time. The Ayodhya coins which were related with Kosala initially issued by process of casting mainly represented hump bull, Hansa and palm trees. As we know that these belong to the 1st and 2nd century AD, they were the local rulers of Ayodhya because their coins have been found around the Ayodhya or Banaras region. They were the local rulers. There were 3 rulers that has been found on the numismatic evidence as the Ayumitra, Satyamitra and Dandeva. Apart from these 3 rulers, there are 2 more reported varieties on this in their coins. But on the basis of coins, there are 5 varieties of these coins. Like peacock on the left side, and there is a fraction of Satyamitra coins where we find weight is approx 4 to 5 grams. Like peacock on the left side, and there is a fraction of the Satyamitra's coin where we find weight is approx 4 to 5 coins. As we know that Shravati was the famous Buddhist center at that time when Jetwan was famous archaeological site have been discovered, and Lord Buddha visited this place many times. Unfortunately, these coins were recovered by the local dealers and it was spread in the numismatic market. They were being sold in the local social media. More details are awaited as maximum coins have gone underground, and it will take some time before these coins are deciphered and documented. This is the first lot that I was able to see the photographs. This is This is the initial lot that I was able to see it, but as there are 6,000 to 10,000 coins, in the coming days I'll be able to document maximum number of 1,000 or 2,000 coins. Thank you. तो ये पूरे में जो शब्द इकौना गांव जहाँ से मिला और निश्चित रूप से इतने सिक्के मिले हैं वो गांव बहुत बड़ा रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो ये शब्द बनता है एक वन से, एक वन ऐसे नाम भी मिलते हैं हमारी प्राचीन परंपरा में, इस तरह के नाम है एक वन। दूसरा इसका जो नाम सही हमको लगता है वो शब्द है इक्ष्वाकु नाम, जहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के लोग रहते थे
उस गांव का नाम इक्ष्वाकु नाम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो गांव भी महत्वपूर्ण है। इक्ष्वाकुओं की पूरी डायनेस्टी का मतलब सीरीज ऑफ वंश ऑफ प्रभवा का एक बोध होता है। तो इन दोनों बातों के लिए सिक्के जितने महत्वपूर्ण हो ना हो, क्योंकि अयोध्या के सिक्के लगभग एक टाइप के हैं, लेकिन ये नाम ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस टिप्पणी देने के लिए मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह सर को बुलाना चाहूँगा कि वह आएं और सभी पढ़े गए पत्रों के विषय में। अब समय का अभाव है, बहुत लंबी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, सभी पत्र अपने हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़े गए। इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ और फिर अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला पेपर जो पढ़ा गया एम वीरेंद्र सर का, वो ऑन कॉइन्स ऑफ सातवाहना रूरल। सातवाहन कॉइनेज पर डी राजा रत्नी सर बैठे हैं, उनका बहुत बेहतर काम है। और जब उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की तो मुझे करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ, और निश्चित रूप से उनके निर्देशन में ये पेपर बना होगा। तो प्रेम पीयूष कुमार जी का जो अयोध्या बोर्ड का पेपर था, ये एक इंफॉर्मेटिव पेपर था, ये सूचनात्मक है। हमारे पास चूँकि सारी इंफॉर्मेशन थी नहीं ना किसी खास सीरीज पर, तो हम लोग कोई भी निष्कर्ष पर नहीं आ पाएंगे। इन्होंने खुद जैसा बताया कि जैसे जैसे क्लाइंट्स इनके पास आएंगे उस पर स्टडी होगी, तो और संभवतः इस पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और सारे लोग को जैसा कभी ये मिला ही नहीं और है तो बहुत इधर उधर फैला हुआ है, तो जैसे आएगा वैसे इस पर काम आगे बढ़ेगा। जीवन दीप कॉलेज जी का पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जैसे कुशाल है, गुप्त है या पूर्व मध्यकालीन कॉइनेज पर बहुत काम होते हैं। जो छोटे स्टेट्स हैं, जो पिछले स्टेट्स या अलग छोटे छोटे राज्य उन पर काम अलग से नहीं होता है, इन्होंने ऐसा प्रयास किया, निश्चित रूप से सराहनीय काम है। इस तरह के और काम भी होने चाहिए ताकि क्षेत्रीय और आधुनिक, चाहे वो आधुनिक काल का हो मध्यकालीन हो, जिस तरह पंकज सर ने मैत्रकों पर पढ़ा जिसमें बहुत कम काम हुआ है, तो उन क्षेत्रों पर और पेपर पढ़े जाएं तो यह बहुत अच्छी बात है। संदीप जी ने विम कटफिशेस के पेपर पर पढ़ा, शिव के मुक्तांकन, वो लिमिटेड सोर्सेज के आधार पर उन्होंने 10-12 पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने बताया कि शिव के द्विमुखी या त्रिमुखी, और वो कॉइनेज का उनका अंकन करेंगे तो त्रिमुखी क्या वो चतुर्मुखी ही ज़्यादा है, तो उसको प्रॉपर वो जब स्टडी कर लेंगे तो उस पर और बेहतर वो निष्कर्ष उनका पाएगा। अनुकृति मिश्रा और प्रीतम कुमार जी का जो लिपि शास्त्री पेपर था चंदेल और कल्चुरी शासकों का, ये बहुत अच्छा प्रयास था अपनी तरफ का, और ये लोग बधाई के बात है, नए शोधकर्ता हैं और ये निश्चित रूप से इस तरह के काम आगे आएंगे तो अन्य शोधार्थियों के लिए रास्ता दिखाएंगे। कीर्ति गौड़ जी का जो पेपर है स्थानीय सिक्कों पर प्रतिबिंबित धार्मिक जीवन, सिक्कों पर धार्मिक अंकन होता रहा है और पंचमार्क सिक्कों के भी धार्मिक अध्ययनों पर बात कही गई है, उस पर कोई निर्णायक मत कभी ना रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हर युग में जब तक कि मॉडर्न एज नहीं आ गया तो सिक्कों पर धार्मिक अंकन होते ही रहे हैं। तो इस पर पहले भी काम हुए हैं, इसको और यदि हम लोग संक्षेप में करके कोई एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर चलेंगे तो और अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि लोकल पॉइंट्स के धार्मिक स्थिति पर बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है। एक जनरल टाइप का पेपर हो जाएगा, इसको आप पर्टिकुलर जब आप ज़्यादा अध्ययन करिएगा तो इस पर स्वाति चक्रवर्ती का भी काम है, प्रवण पी जस का भी काम, बहुत से लोगों का काम है। इस पर आपको और ज़्यादा मटेरियल मिलेगा तो आप उसको किसी पर्टिकुलर सेक्ट को लेकर करिएगा तो आपका अध्ययन जो होगा वो बेहतर हो सकेगा। इसी टिप्पणी के साथ इस सत्र को जो पेपर पढ़ने का सत्र ये समाप्त हो रहा है। हमारे साथ 2 दिन हम लोग के साथ साथ जो परास्नातक या शोध छात्र में काफ़ी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहे हैं।
तो नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग जुड़े हुए लोग थे उन लोगों का विचार है कि इन बच्चों के साथ भी कुछ हम लोग प्रश्न उत्तर करें कि इनको क्या लगा या सिक्कों के बारे में क्या जानते हैं या कौन क्या जानना चाहते हैं। तो इतने ढेर सारे विशेषज्ञ अब फिर कब जुटेंगे यहाँ पर, ये आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पर सारे स्पेशलाइज लोग मौजूद हैं। तो इसमें से वैसे तो सारे लोग स्पेशलाइज हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं मंच पर बुला लेता हूँ कि वो हमारे साथ आ जाएंगे और हम लोग बैठ के बच्चों से कुछ सवाल लेंगे और उनका हम जवाब देंगे। ये क्या वो इस 3 दिनों में समझे हैं हमसे या फिर क्या वो जानना चाहते हैं सिक्कों के बारे में। तो मैं मंच पर, हालांकि सारे लोग यहाँ बुलाने लायक हैं, लेकिन क्योंकि सारे लोग को बैठाना वो उचित नहीं रहेगा, सारे लोग यहीं हैं। यदि बच्चों को सवाल ऐसा आता है तो वो जवाब वहाँ से दे सकते हैं। मैं मंच पर नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर डी राजा रेड्डी सर को बुलाता हूँ। डॉक्टर संजय गर्ग सर हैं हमारे साथ। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप आ जाएं। और प्रशांत कुलकर्णी सर भी हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी आ जाएं हम लोग के साथ। और लोकल में नीरज ठाकुर जी हैं, वो बच्चों के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करने के लिए असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर यदि हैं तो वो भी हम लोग के साथ आ जाएं कि हम लोग बच्चों के कुछ सवाल ले सकें और बच्चों का भी कुछ हम यहाँ से मार्गदर्शन कर सकें।